لوکل گورنمنٹ بل 2025 کی منظوری کی گئی ہے۔ حکومت پنجاب نے اضلاع کی سطح پر مقامی حکومتوں کے نئے فریم ورک کے اصول جاری کیے۔ بل میں کہا گیا ہر ضلع کو شہری اور دیہی علاقوں میں تقسیم کیا جائے گا، جبکہ ہر مقامی علاقہ اپنی علیحدہ حدود، حیثیت اور انتظامی اختیارات کے ساتھ قائم ہوگا۔ گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہر مقامی حکومت کو تشکیل، درجہ بندی اور حدود کا اعلان کرے گی، جبکہ مقامی حکومتوں میں ٹاؤن کارپوریشن، میونسپل کمیٹی اور تحصیل کونسل شامل ہوں گی۔ بل کے متن کے مطابق شہری علاقوں میں آبادی اور انتظامی ضروریات کے مطابق مختلف نوعیت کی مقامی حکومتیں قائم ہوں گی، جبکہ 2 لاکھ سے زائد آبادی والے شہری علاقے میونسپل کارپوریشن کہلائیں گے۔ آپ کو بتائیں 25,000 سے 2 لاکھ کے درمیان آبادی والے شہری میونسپل علاقے کمیٹی کہلائیں گے۔ متن کے مطابق ایسے شہری علاقے جو کسی ضلع کا ہیڈ کوارٹر ہوں انہیں میونسپل کمیٹی یا میٹروپولیٹن کارپوریشن کا درجہ دے دیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لوکل گورنمنٹ بل 2025 کی منظوری۔ حکومت پنجاب نے اضلاع کی سطح پر مقامی حکومتوں کے نئے فریم ورک کے حصول جاری کر دیے۔ بل میں کہا گیا ہے کہ ہر ضلع کو شہری اور دیہی علاقوں میں تقسیم کیا جائے گا، جبکہ ہر مقامی علاقہ اپنی علیحدہ حدود، حیثیت اور انتظامی اختیارات کے ساتھ قائم ہوگا۔ بل کے متن کے مطابق حکومت سرکاری گیزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہر مقامی حکومت کی تشکیل، درجہ بندی اور حدود کا اعلان کرے گی، جبکہ مقامی حکومتوں میں ٹاؤن کارپوریشن، میونسپل کمیٹی اور تحصیل کونسل شامل ہوں گے۔ پنجاب میں آئندہ بلدیاتی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں مختلف اضلاع میں مختلف رفتار سے جاری ہیں۔ ملتان میں الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کا کام شروع کرتے ہوئے نقشے حاصل کر لیے۔ 1 نومبر کو غیر حتمی فہرست جاری کی جائے گی، جہاں ایک یونین کونسل میں 25,000 کی آبادی ہوگی۔ اس کے برعکس رحیم یار خان میں حلقہ بندیوں کا کام التوا کا شکار ہے، کیونکہ ضلع کی حد بندیوں کے نقشہ جات ابھی تک فراہم نہیں کیے جا سکے۔ رحیم یار خان میں یونین کونسل کی آبادی کو کم کر کے 20,000 کر دیا گیا۔ حلقہ بندیوں کی ابتدائی لسٹ 31 اکتوبر تک مکمل کرنی ہے اور حتمی حلقہ بندیاں 8 دسمبر تک مکمل کی جانی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، پنجاب میں آئندہ بلدیاتی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں مختلف اضلاع میں مختلف رفتار سے جاری ہیں۔ ملتان میں الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کا کام شروع کرتے ہوئے نقشے حاصل کر لیے۔ 1 نومبر کو غیر حتمی فہرست جاری کی جائے گی، جہاں ایک یونین کونسل میں 25,000 کی آبادی ہوگی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی ملتان میں سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ بلدیاتی انتخابات لڑنے کے خواہش مند امیدواران کی میل ملاقاتیں بھی جاری ہیں۔ مزید جانیں گے جنید انور سے، جی بتائیے گا۔ جی بالکل، بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں اور خاص طور پر جو سرگرمیاں ہیں ان کا آغاز ہو چکا ہے، اور خاص طور پر بلدیاتی نمائندوں کو ان کی یونین کونسلز میں تیار کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما اور لیگی ٹکٹ ہولڈر سید بابر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس ان سے بات کریں گے۔ شاہ جی، بلدیاتی انتخابات کی گونج ہے اور بلدیاتی امیدواران کو جو ہے وہ یکسو کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے، کیا تیاریاں ہیں بلدیات؟ جو بلدیاتی امیدوار ہیں وہ ہم سے کہنے سے پہلے ہی تیار ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ کب الیکشن ہو، اور ہم ایز اے جماعت اس میں بھرپور حصہ لیں گے، ہمارے امیدوار اس میں بھرپور حصہ لیں گے، اور آپ کو ملتان میں اکثریت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کی جیتتی ہوئی باقاعدہ، کیونکہ لوگوں کے ساتھ وہ ٹچ ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کے مراسل ہیں، انشاءاللہ وہی ونر ہوں گے اور وہ بھرپور حصہ لینے جا رہے ہیں اور بڑے پرجوش ہیں اس ٹائم۔ اچھا شاہ جی، مسلم لیگ نون جو ہے وہ تقسیم در تقسیم نظر آتی ہے، ملتان کے اندر بھی مسلم لیگ نون کے دھڑے ہیں، تو کیسے ممکن ہوگا کہ اگر اول تو غیر جماعتی انتخاب ہے، تو اگر جماعتی انتخاب ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون تو تقسیم ہے؟ اچھا، ایسا ہوتا ہے ہر جماعت میں تقریباً اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن PP 216 کی میں بات کروں گا، یہاں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ بڑی مشاورت سے جتنے بھی ورکر ہیں، جتنے کارکنان ہیں، جتنے بھی ووٹر ہیں، جو نمایاں ہیں، جو حلقوں میں، گلیوں میں، محلوں میں کام کرتے ہیں، ان کی مشاورت سے سب کچھ ہوگا اور ان کی مشاورت سے سب کچھ ہوتا آ رہا ہے۔ جی بالکل، لیگی ٹکٹ ہولڈر سید بابر شاہ کا کہنا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے تیار ہے، اور جنہوں نے بلدیاتی الیکشن لڑنا ہے وہ اس ٹائم پرجوش بھی یاری جو ہے وہ اس کو مضبوط بھی کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے
उसकी हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो है वो मुल्तान से वाज़ेह अक्सरियत जो है वो हासिल करेंगे। जी, गंदम किसानों के हाथ से निकली तो कदर बढ़ गई। गंदम की कीमतों में इजाफे ने शहरियों के बजट को बुरी तरह मुतासर कर दिया। रहीम यार खान में गंदम 5, आटा 10 रुपए किलो महंगा। गंदम की कीमत 90 से 95 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। आटा 100 से 110 पर पहुंच गया। आए रोज कीमतें तब्दील होने से शहरी शदीद परेशान है। इंतजामिया से कीमतें कंट्रोल करने की अपील कर दी। आपको अपडेट करते चले, गंदम किसानों के हाथों से निकली तो कदर बढ़ गई। गंदम की कीमतों में इजाफे ने शहरियों के बजट को बुरी तरह मुतासिर किया है। रहीम यार खान में गंदम 5, आटा 10 रुपए किलो महंगा। गंदम की कीमत 90 से 95 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। बात करें आटे की, आटा 100 से 110 रुपए पर पहुंच गया। आए रोज कीमतें तब्दील होने से शहरी शदीद परेशान। इंतजामिया से कीमतें कंट्रोल करने की अपील की है। खबर है लोधरा में आटा, घी, कुकिंग ऑयल और चीनी समेत हर शय की कीमतों में 30% तक इजाफा हुआ है। महंगाई के चढ़ते बुखार से गरीब और सफेद पोश तबकात के हालात खराब हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं राना आसिफ हनीफ। जी बताइएगा। बिल्कुल, पूरे पंजाब की तरह लोधरा शहर भी महंगाई के हाथों इस वक्त तंग आया हुआ है। हर सारिफ, हर शहरी हाय महंगाई का रोना रो रहा है। शाय खुर्द और नोश के निर्ख हैं कि हर घंटे बाद जैसे तब्दील हो रहे हैं। अगर आज के अशाय खुर्द और नोश के निर्खों की बात करें तो चीनी जो चंद रोज पहले तक 170 रुपए किलो थी, आज वो 190 रुपए किलो पर पहुंच चुकी है। जबकि उसका सरकारी रेट बता दें आपको 178 रुपए इन्होंने मुकर्रर किया हुआ है, यानी इंतजामिया ने। आटा 93 रुपए किलो था, अब 120 रुपए किलो, यानी 30 रुपए का फर्क आ गया है। मूंग दाल जो थी वो 390 रुपए की थी, अब 420 पे पहुंच चुकी है। मसूर 240 रुपए किलो होती थी, अब 290 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। दाल मास 410 रुपए किलो थी, अब 480 रुपए किलो पर पहुंच चुकी है। लोकल घी, यानी यहाँ जो मकामी वसेब के जो फैक्ट्री हैं उनका लोकल घी में 15 रुपए किलो का फर्क है, जबकि ब्रांड्स के घी में कम से कम 70 से 80 रुपए किलो पर फर्क आ चुका है। अब इस महंगाई के सामने एक मजदूर, एक दिहाड़ीदार, एक ठेले वाले की क्या हैसियत है, क्या परेशानी है? हजूर, आप एक ठेला लगाए बैठे हैं, क्या हालात हैं आपके, महंगाई क्या कह रही है? सर जी, ये मेरा ठिया है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे 6 बच्चे हैं। आज आलम ये है कि आटा पहले 100 कुछ रुपये था, 20 रुपए किलो बढ़ गया। हम चीनी और आटा नहीं खरीद सकते, दालें चावल तो ये तो दूर की बात है। मैं यहाँ 1800 कमाता हूँ सारा दिन, मैं अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता। और लोगों में अब गुस्सा है और शदीद जो है इस वक्त वो तैश में इसलिए हैं कि महंगाई के जो दावे किए गए थे वो कम नहीं बल्कि बढ़ाए जा रहे हैं। मजदूर की जिंदगी तंग है, शायद खुद और निर्खों में कमी का मुतालबा कर रहे हैं। जी, खानों का अहम जुज आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। अदरक की 4, टमाटर की 6, जबकि लहसुन की 4 सेंचुरी मुकम्मल। आम आदमी के लिए कोई भी सालन पकाना मुश्किल हो गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमें ज्वाइन किया है तजम्मुल हुसैन कुरैशी ने। तजम्मुल बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं छपकलां के शहर विजयवाला के मेन बाजार में मौजूद हूँ। आज अगर मैं महंगाई की बात करूँ तो इशाए खुर्दनोश के साथ, फलों के साथ अब सब्जियां भी इतनी महंगी हो चुकी हैं कि आम शहरी की कुव्वत खरीद से बाहर है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, हम इनसे जान लेते हैं। जी सर, बताइएगा क्या खरीदारी करने के लिए हैं और क्या चीज़ महंगी नजर आ रही है आपको? हम यहाँ विजयवाला में आए हैं आज सब्जी की खरीदारी करने के लिए। यहाँ तो चीज़ें इतनी महंगी, आसमान से बातें करने लगी हैं। यहाँ हमने रेट पूछा, टमाटर का रेट 400 से 500 रुपये किलो है, और दूसरा जो है भिंडी का रेट पूछा है वो 300 रुपये किलो है, और अदरक लहसुन का रेट 800 से 900 रुपये पर केजी है। तो हमें बहुत मुश्किलात का सामना है। हमारा हुकूमत वक्त और प्राइस कंट्रोल कमेटियों से मुतालबा है कि यहाँ विजयवाला के बाज़ार में जो है ना बहुत इंतहाई फल भी महंगे हैं, सब्जियां भी महंगी हैं और गोश्त भी इंतहाई महंगा हो चुका है। तो हम गरीब आदमी कहाँ जाएं? आज हमें सब्जी भी खरीदना बहुत मुशक्कत है, बहुत मुश्किल हो चुकी है कि हमारी पहुंच से दूर हो चुकी है। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। शहरी का यही कहना है कि जहाँ गोश्त, शय खुर्दनोश और फल महंगे हैं, वहाँ सब्जियों की कीमत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा है। इस वक्त मार्केट में जो टमाटर है वो 400 से 500 रुपये फ़ी किलो, अदरक जो है वो 800 रुपये फ़ी किलो, और इसके साथ लहसुन भी 400 रुपये फ़ी किलो, और इसके साथ साथ दीगर जो सब्जियां जिसमें आलू गोभी है, आलू है, इसके साथ साथ बैंगन है, बंद गोभी है, और दीगर जो सब्जियां भिंडी है वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। इन्होंने अपील की है प्राइस कंट्रोल कमेटियों से कि टमाटर और दीगर सब्जियों के रेट आसमान से बातें करने लगे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कीमतों के इजहारे पर इजहार तफ्तीश।
वज़ीर आला मरियम नवाज की सब्जियों के नर्ख में कमी और दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम की हदायत है। हर बाजार के दाखिली रास्ते पर भी रेट लिस्ट आवेज़ा करने की हदायत की गई। वज़ीर आला ने कहा, हर दुकान पर नर्खनामे नुमाया तौर पर आवेज़ा कराने का हुक्म है। 3,68,000 शॉप्स पर प्राइस कंट्रोल एक्ट की खिलाफवर्जी पर 5 करोड़ 48 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। 321 एफआईआर, 4,607 अफराद को गिरफ्तार किया गया। डेरा गाजी खान में मौसम के बदलते ही एलपीजी माफिया भी सरगर्म हो गया। एक दिन में गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए का इजाफा, कीमत 2800 रुपए तक पहुंच गई। मजीद तफसीलात जानेंगे आशान बुखारी से। आशान बताएगा। ऐसे ही शहर को सर्दी की लहर ने छुआ है, तो ऐसे में जो एलपीजी माफिया है वो भी सरगर्म हो चुका है। एक रोज़ के दौरान एलपीजी गैस की फी किलो कीमत में 10 रुपये इजाफा, जबकि जो सिलेंडर की कीमत है उसमें 100 रुपये का इजाफा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ इस वक्त एक दुकानदार भी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी भाईजान, बताइएगा क्यों गैस इतनी बढ़ रही है, क्या वजूहत है? ये इसके सेल और डिमांड के ऊपर होता है ना, कि डिमांड बढ़ जाती है तो ऑलरेडी फिर प्लांट वाले भी इजाफा कर देते हैं। ये कल 2 दिन के अंदर 100 रुपये सिलेंडर के पीछे इजाफा हुआ है और पर केजी 10 रुपये इजाफा हो गया है ना। अभी कल तक 250 रुपये पर केजी चल रही थी, आज 260 रुपये चल रही है ना। अब आगे का पता नहीं है, सर्दी में जितना इजाफा होगा तो फिर पीछे से महंगी मिलेगी, आगे भी फिर महंगी सेल होगी। जी, दुकानदारों का यही कहना है कि पीछे से जो प्लांट्स हैं वहाँ से इनको जो है गैस की कीमत बढ़ने से इनको महंगी मिल रही है, तो ये भी आगे महंगी फरोख्त कर रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है जो यहाँ पे गैस भरवाने के लिए आए हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी भाईजान, बताइएगा, गैस महंगी हो गई है, जैसे सर्दियाँ आई हैं, अभी तो सर्दियाँ पूरी तरह भी नहीं आई, तो क्या कहेंगे इस बारे? आगे तो लग रहा है कि मजीद महंगी होगी। रेट तो बे हाल 10 रुपये वधन, मजीद हाल बे रेट वधन पिछो कन के जो ही सर्दियाँ शुरू स्टार्ट थे सन रेट मजीद वध सिलेंडर के पिछो 100 रुपया वध गए, उन्हें 260 रुपये किलो गैस, हाल मजीद भी आई वधने रेट। हुकूमत को चाहिए बिजली रेट कम करन, बिजली का रेट ज्यादा है, गैस का ज्यादा है। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि आज जो कीमत है 260 रुपये फी किलो कर दी गई है। अभी तक जो सर्दियाँ हैं वो पूरी तरह आई भी नहीं है, लेकिन जब जैसे ही आगे सर्दियाँ आएंगी तो सच है कि ये इन कीमतों के अंदर मजीद इजाफा होगा। इसी हवाले से जो शहरी हैं उनका ये मुतालबा है कि जो अपना घर बनाना हुआ मुश्किल, मियांवाली में भट्टा माफिया सरगर्म है। हुकूमती अहकामात नजरअंदाज कर दिए, ईंटों के नर्ख दुगने कर दिए। शहरियों के लिए अपना घर बनाना तो दूर की बात, एक कमरा बनाना भी मुश्किल हो गया। इसी बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी अपडेट कीजिएगा। मियांवाली के शहरियों के लिए घर बनाना मुश्किल हो गया। सीएम पंजाब की जानिब से अपना घर अपनी स्कीम के तहत 15 लाख रुपए कर्जे का सिलसिला शुरू हुआ तो भट्टा माफियाज के जो मालकान हैं वो भी सरगर्म हो गए। 8,000 की बजाय ईंट का निर्ख 15,000 रुपए मुकर्रर कर दिया। अब लोगों को घर बनाना तो क्या, एक कमरा बनाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनका तामीराती काम भी रुका हुआ है, इनसे इस सवाल से हम बात करते हैं। क्या कहेंगी जी? रेट मुकर्रर किया था 8,000 रुपये, भट्टा मालकान और इंतजामिया को इस पर अमल दरामद कराइए चाहिए था। अब भट्टा मालकान 15,000 रुपये दे रहे हैं, जो गरीब आदमी की पहुंच से बह रहे और अब वो मकान भी नहीं बना सकते। अब इंतजामिया को इस पर अमल दरामद कराना चाहिए। जी, इंतजामिया को इस पे अमल दरामद कराना चाहिए। आपसे बात करते हैं। एक तरफ तो सीएम पंजाब का गरीबों के लिए ये एहसन इकदाम सामने आया, दूसरी जानिब ये आपका काम रुका हुआ है सारा, क्या कहेंगे सवाल? सर, ये मरियम नवाज ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, अपना घर अपनी स्कीम वाला। ये जो भट्टा मालकान है इन्होंने आवाम का खून निचोड़ना शुरू कर दिया है जब से ये स्कीम शुरू हुई है। और ये ईंटों का जो रेट है सरकारी वो 8,000 मुकर्रर हुआ है, मरियम नवाज ने की है, पंजाब गवर्नमेंट ने की है। लेकिन ये जो भट्टा मालकान है ये आवाम से 15,000 के पैसे ले रहे हैं और उसके बदले में ये जो मेरा मकान है ये उधर ही का उधर रह गया है। हम आगे इसकी तामीर भी नहीं करा सकते क्योंकि ईंटें इतनी महंगी हो गई हैं। यही मुतालबा किया जा रहा है कि भट्टा मालकान को सरकारी निर्ख पर ईंटें फरोख्त करने का पाबंद किया जाए। जी बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज साहब का। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी मुल्तान की सितंबर की रिपोर्ट जारी। सितंबर में 1400 किलो प्लास्टिक जब्त किया गया। 4 फैक्ट्रियां सील, दुकानों और फैक्ट्रियों पर 8 लाख रुपए जुर्माना किया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे लिशबा आसिफ से।
जी बिल्कुल, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की जानिब से जो है 75 माइक्रोन से जो कम का इस्तेमाल का प्लास्टिक है इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर अब्बास। इनसे जान लेते हैं कि सर बताइएगा कि एक तो प्लास्टिक आप जब जब्त कर लेते हैं उसका क्या आगे करते हैं, और दूसरा कि अभी भी कुछ लोग जो है जो 75 माइक्रोन से पतला प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है EPA कैसे कार्रवाई आगे करेगा। सितंबर के मंथ में ये ऑलमोस्ट 1400 जो प्लास्टिक है जो कि हमें हेड ऑफिस से टारगेट मिला होता है कि आपने 300 जो मुल्तान का 350 जो केजीज हैं आपने करने हैं। इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट को होता है कि आपने सर्वेलेंस करनी है और कन्फिस्केशन करनी है, फाइन्स करने हैं। तो हमें 1400 जो है ऑलमोस्ट हमने कन्फिस्केट किए हैं और हमने इन पे फाइन्स भी किए हैं और सील्स भी किए हैं। और दूसरा हम जो है उनको अवेयरनेस भी साथ साथ हमारे सेशन चलते रहते हैं, हम प्लास्टिक कमेटी के साथ मीटिंग भी करते हैं। जी बिल्कुल, जो EPA की जानिब से प्लास्टिक के खिलाफ जो पतला प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और इनकी जानिब से जो है प्लास्टिक एसोसिएशन के साथ भी मीटिंग जारी है। वहीं पे मुख्तलिफ जो बाज़ार हैं उनमें भी EPA की जानिब से इंस्पेक्शन जारी है और सितंबर के जी शुक्रिया लिशपा। अभी आपको अपडेट करें, मुल्तान शहर में गैर कानूनी हाईएस और बस स्टैंड्स की भरमार है। सैयद वाला बाईपास पर ट्रांसपोर्ट की जानिब से गैर कानूनी स्टैंड कायम कर दिया गया है। गैर कानूनी स्टैंड कायम होने से ट्रैफिक में दुश्वारी का सामना है। मुल्तान शहर में गैर कानूनी हाईएस और बस स्टैंड्स की भरमार है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अमर खान से। जी अमर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में बात करें गैर कानूनी स्टैंड के हवाले से तो मुल्तान में सैदा वाला बाईपास पर जो है वो गैर कानूनी बस स्टैंड और वैगन जो हाईएस है उसके स्टैंड जो है वो कायम कर रखा है। लेकिन यहाँ पर जो है वो गैर कानूनी बस स्टैंड कायम होने से शहरियों को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर ट्रैफिक की रवानगी में जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहा है। अगर मेरा कैमरामैन हसीब आपको दिखा सके, यहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ भी यहाँ पर लगी हुई हैं और तकरीबन जो है वो हर 5 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद यहाँ पर जो है वो एक गाड़ी निकलती है, जबकि दूसरी गाड़ी जो है वो यहाँ पर आ जाती है। अगर मेरा कैमरामैन हसीब यहाँ से दूसरी तरफ से दिखाए तो ये जो है जो ऐवान चौक से लेकर जो है वो सैदा वाला बाईपास चौक तक मुसलसल जो है वो गाड़ियों की लाइनें जो है वो लग चुकी हैं, जिससे जो है वो शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। मिनटों का सफ़र घंटों में तय भी हो रहा है। और साथ साथ जो है वो जब हमने शहरियों से भी बात की तो शहरियों का भी यही कहना था कि ट्रैफिक रोड जो है रोड खुला करने का मकसद ये था कि शहरियों को जो है वो सहूलत फराहम की जानी थी और जबकि जो है वो ये जो तजावज़ात थे उनको जो है वो यहाँ से हटाया भी जाना था। लेकिन यहाँ पर जो है वो तकरीबन 10 से 15 फुट जो है वो रोड खुला किया गया। लेकिन यहाँ पर जैसे ही रोड खुला हुआ तो जो हाईएस्ट वाले हैं और बस स्टैंड वाले हैं उन्होंने यहाँ पर जो है अपने जो है वो गैर कानूनी अड्डा बना लिया। मजीद यहाँ पर बात करने के लिए शहरी भी मौजूद हैं हमारे साथ बात करने के लिए। इनसे बात करते हैं, क्या समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं गैर कानूनी स्टैंड के हवाले से, क्या कहते हैं? ये रोड इसीलिए खुला किया गया था कि यहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो जो बहुत ज़्यादा हो जाता है छुट्टी के टाइम पर, खासकर इसलिए यहाँ पर इस रोड पर कॉलेजेस यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, फ्लो के लिए इस रोड को खुला किया था। ये नाजायज़ जो है स्टैंड बनने की वजह से अभी भी वही मसले मसाइल जो है ना वो हैं कि जी ट्रैफिक बंद हो जाती है, लंबी लाइनें लग जाती हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। इसे जो है इंतज़ामिया को पता भी है कि यहाँ पर ये गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी जो है वो कार्रवाई नहीं करते। अगर कार्रवाई करते हैं तो फिर वो दोबारा से आ जाता है ये। जी बिल्कुल, मुल्तान का ये मेन चौक है सैदा वाला बाईपास, जिसमें ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, जबकि उनको पता भी है कि यहाँ पर जो है स्पेशली तौर पर उनकी ड्यूटियां लगाई जाती हैं कि गैर कानूनी स्टैंड जो है वो इसको यहाँ पर नहीं लगाने देना। लेकिन ट्रैफिक वार्डन्स यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, जिससे जो है वो शहरियों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही है। बात करने के लिए हमारे साथ दूसरे भी शहरी मौजूद होंगे, इनसे बात करते हैं। क्या समझते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले? देखिए, जो हुकूमत ने ये रोड खुला करवाया था कि यहाँ पे ट्रैफिक का रश ना हो और मतलब कि ट्रैफिक आसानी से गुजर सके, इन्होंने यहाँ पे अड्डा बनाया हुआ सब बसों वालों ने, ठीक है। अब आपके सामने पीछे देख भी रहे हैं लाइन लगी है और इंतज़ामिया को भी पता है कि यहाँ पे ये अड्डा बना हुआ है, उसके बावजूद भी वो ना ही इधर आ रहे हैं और ट्रैफिक वार्डन वाले भी हैं, वो ना ही इनको रोकते हैं ना ही कुछ करते हैं। हमारी इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि ये अड्डा ख़त्म करवाया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर ये जो गैर कानूनी स्टैंड बनाया हुआ है इसको जो है वो फौरी तौर पर ख़त्म करवाया जाए, जबकि
ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं, जबकि इंतजामिया के टीमें जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इस हवाले से कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही। जबकि यहाँ पर ट्रैफिक का बहाव जो है वो भी जो है वो छुट्टी के औकात में भी काफ़ी यहाँ पर रश होता है, जिससे शहरियों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। मजीद जो है शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो है वो सैदावाला बाईपास से वाहन चौक तक जो भी गैर कानूनी स्टैंड जो है वो कायम किए हुए हैं उनको जो है फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, ताकि शहरियों को जो सहूलत रोड खुला करके दी गई थी वो जो है वो ले सके। जी अमर खान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। मुल्तान MTA इन्फोर्समेंट टीम की तजावुज़ात के खात्मे के लिए कार्रवाइयां। बिहाड़ी रोड के अतराफ तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। खोखे, कैबिन और दीगर गैर कानूनी ढांचे हैवी मशीनरी से हटा दिए गए। कार्रवाई के बाद सड़कों को ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया। अवामी शिकायत पर शाहरुखिन कॉलोनी B ब्लॉक में कार्रवाई की तैयारी मुकम्मल। मुस्तकबिल तजावुज़ात खत्म करने के लिए हतमी वार्निंग नोटिस भी जारी। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी विहाड़ी राव नईम ने रेडी बाजार का दौरा किया। चीफ ऑफिसर ने जारी काम की सूरत-ए-हाल का जायजा भी लिया। मजीद बता रहे हैं हाफिज स्वालिह मोहम्मद, बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर जो है वो रेडी बाज़ार प्रोजेक्ट शुरू किया गया, ताकि शहर को खूबसूरत और साफ़ सुथरा बनाने के लिए रेडियो को एक जगह पे इकट्ठा किया जाए, ताकि लोगों को ख़रीदो फरोख्त के अंदर भी जो है वो आसानी हो सके। बिहाड़ी के अंदर भी एक मॉडल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ताकि तमाम शहर की रेडियो को यहाँ पर इकट्ठा किया जा सके। आज COMC बल्दिया जो है वो राव नईम यहाँ पर आज उन्होंने विज़िट किया है, काम की सूरत हाल का जायज़ा लिया। हमारे साथ मौजूद है। सर, ये बताइएगा, ये प्रोजेक्ट जो है वो कितना है और इसके अंदर कितनी रेडियो को इकट्ठा किया जा रहा है? ये तकरीबन 20 मिलियन का प्रोजेक्ट है, जो तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है। यहाँ पे फ़िलहाल हम 250 रेडी का है प्रपोज़ल, उसमें फिर देखेंगे अगर और गुंजाइश है तो मज़ीद भी इसमें एडजस्ट करेंगे। इससे हमारा जो रेल बाज़ार का रश है, ये गोल मस्जिद के या गोल चौक के करीब जो रश है वो इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाए और लोगों के लिए बड़ी आसानी इसमें पैदा हो जाएगी। अच्छा सर, यहाँ पे किस चीज़ की सहूलत दी गई है ताकि रेडी बाज़ार के अंदर जो लोग हैं, जो रेडी बान होंगे और इसके साथ जो लोग यहाँ पे खरीदो फरोख्त के लिए आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे कौन कौन सी सहूलतें यहाँ पे मुहैया की गई? ये देखिए जी, यहाँ नए हमने वाशरूम उनके लिए बना के दिए हैं। यहाँ पे चौकीदार भी होगा, उसका अलहदा कमरा बनेगा, तो वो तमाम चीज़ों को मॉनिटर करेगा। पानी की सहूलत होगी उनके लिए, यहाँ पे पानी का पूरा सिस्टम होगा, सीवरेज का पूरा सिस्टम ये देख लें आपके सामने बनाया गया है। इसी तरह सनशेड का भी जो है डी साहब ने अब दोबारा हुक्म दिया है कि क्योंकि सनशेड पहले एस्टिमेट में नहीं थे, अब उन्होंने ये हुक्म दिया है कि शेड्स को भी शामिल करें, उसके बगैर ये फिर मुकम्मल नहीं होगा। जी बिल्कुल, यही सूरत हाल है कि रेडी बाज़ार जो है वो यहाँ पे तकरीबन इब्तदाई तौर पे 250 के करीब जो है वो यहाँ पे रेडियाँ जो है यहाँ पे बनाई जाएंगी। इसके बाद जैसे ही अगर गुंजाइश होगी तो बाकी रेडियों को भी यहाँ पे ला खड़ा किया जाएगा और इससे जो है वो शहर की खूबसूरती बरकरार रहेगी और इसके साथ साथ लोगों को एक ही जगह पे एक ही छत तले तमाम सहूलियात जो है वो मुयसर होंगी। जी हाफिज स्वालिह मोहम्मद, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, सरगोदा डिवीजन का वाहिद सिविल अस्पताल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मरीजों को अद्वियात न मिलने की शिकायत आम हो गई। दूर दराज से आने वाले शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शेख उस्मान से। उस्मान, बताइएगा। अगर हम बात करें तो सरगोदा डिवीजन का वाहिद सरकारी अस्पताल है DHQ टीचिंग अस्पताल, जहां पर अगर हम बात करें तो सहूलियात की फुकदान ही नज़र आता है। आए रोज़ यहाँ पर कभी अद्वियात नहीं होती और कभी यहाँ पर बेड नहीं है, कभी यहाँ पर मरीजों को चेकअप नहीं किया जाता। शहरी जो है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, इनसे हम जानते हैं जी आप इस हवाले से क्या कहेंगे। आए रोज़ करप्शन के इल्ज़ामात भी लगते रहते हैं, DHQ पे अद्वियात का भी फुकदान रहता है, क्या कहेंगे इससे? लोगों को एक डिस्प्रिन की गोली तक मैसर नहीं है। आप मरीज को ले आए, कहेंगे ये दवाई ये ले आए वो ले आए, आपको चिटें इतनी दे देंगे कि मरीज का जो लवाकीन होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि या अल्लाह मैं कहाँ आ गया हूँ। मगर अब पूरे डिवीज़न में वाहिद अस्पताल हमारा सरगोदा का है, यहाँ पर सहूलतों का फुकदान है, स्वाय करप्शन के और कोई दास्तान यहाँ आपको नहीं मिलेगी। लोग अपने मरीज को बचाने के लिए लाते हैं, मगर सहूलतें ना होने की वजह से अक्सर देखा गया है कि यहाँ पर वो खुशाब, मियाँ वाली, सरगोदा या दीगर कहीं से भी आते हैं, वो लेकर आते हैं, डॉक्टर आगे से कहते हैं जी इसे लाहौर ले जाओ। बस डॉक्टर इस बात की तनख्वाह ले रहे हैं, मरीज को देखते हैं, कहते हैं इसे लाहौर ले जाओ। जैसा कि आपने जाना कि यहाँ पर सहूलियत के फुकदान की वजह से शहरी जो है काफ़ी परेशान नजर आते हैं। शहरियों का भी यही कहना है, आए रोज़ यहाँ पर करप्शन के इल्ज़ामात तो इनके ऊपर लगते रहते हैं, एंटी करप्शन के जो छापे भी पड़ते रहते हैं और यहाँ
जी बहुत शुक्रिया शेख उस्मान हमारे साथ हैं। अभी आपको बताएं, खानेवाल जिले इंतजामिया की जानिब से शहर के एंटी गेट पर ब्यूटिफिकेशन की जा रही है। शहरी कहते हैं पौधे भी लगा दिए गए, घास भी बिछा दी गई। ब्यूटिफिकेशन के बाद हिफाजत न होने से खूबसूरती मांड पड़ जाती है। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। नदीम, आगाह कीजिएगा। इंतजामिया की जानिब से खानेवाल का जो एंट्री गेट है वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन की जा रही है, पौधे लगाए जा रहे हैं, खूबसूरत बनाया जा रहा है। लेकिन आज से अगर 3 साल पहले की बात की जाए तो इसी एंट्री गेट को बड़े खूबसूरत अंदाज से यहाँ से सजाया गया था। एक प्राइवेट टाउन ने इसको स्पॉन्सर किया था, लाखों रुपए लगाए गए थे, लेकिन ये फिर खंडरात में तब्दील हुआ था। अब दोबारा फिर तब्दील और की जा रही है। शहरी क्या कहते हैं हम जानेंगे इस हवाले से। क्या कहेंगे कि ब्यूटिफिकेशन की जा रही है, 3 साल पहले भी की गई थी, तो क्या उम्मीद करते हैं? सर यहाँ पे कोई प्रॉपर इनकी देखभाल के लिए कोई बंदा अरेंज नहीं करते गवर्नमेंट वाले। अगर ये खर्चा करते हैं, एक दफ़ा खर्चा कर देते हैं, वो यहाँ पे लोग हैं, जुआरी हैं, नशेई हैं, वो उसे उखाड़ के ले जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो दरख्त बड़े होते हैं उनका काट के ले जाते हैं। ये भी गवर्नमेंट को एक बंदा यहाँ रखना चाहिए इसकी हिफाजत के लिए। अब हम लोग तो हिफाजत नहीं कर सकते ना, हम काम पे जाएं या इस मेन गेट की हिफाजत करें। जी बिल्कुल, शहरी ये कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो है वो यकीनी तौर पर लगाया जाता है पैसा। आज से 3 साल पहले भी आपने देखा इसे खूबसूरत बनाया गया, फिर क्या हालात हुए और अब जो हालात किए जा रहे हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं? इसकी खूबसूरती होनी चाहिए और ऐसे काम होने चाहिए। अच्छी बात है खूबसूरती के लिए, पर यह है कि इसकी निगरानी भी करनी चाहिए इसका, ताकि ये खूबसूरत लगे। जी, शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि इसकी निगरानी होनी चाहिए ताकि ये खूबसूरत लगे, और यही मुतालबा करते हैं दीगर शहरी भी दिखाई दिए हैं कि करोड़ों रुपए के मेगा फ्रॉड में मुलव्वस मुल्जिम मलिक अब्दुल हई अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिम को मज़ीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। मुल्जिम के खिलाफ 68 करोड़ 80 लाख रुपए फ्रॉड की 191 शिकायत मौसूल हुई थी। नैब ने मुल्जिम की 7 जायदादें फ्रीज कर दी। मुल्जिम ने 4H ट्रेडर्स और AH एक्सपर्ट्स के नाम से जाली कंपनियां बनाई। आपको अपडेट करें, करोड़ों रुपए के मेगा फ्रॉड का केस है। मेगा फ्रॉड में मुलव्विस मुल्जिम मलिक अब्दुल हई अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिम को मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। मुल्जिम के खिलाफ 68 करोड़ 80 लाख रुपए फ्रॉड की 191 शिकायत मौसूल हुई थी। नैब ने मुल्जिम की 7 जायदादें फ्रीज कर दी। मुल्जिम ने 4H ट्रेडर्स और AH एक्सपर्ट्स के नाम से जाली कंपनियां बनाई थी। आपको अपडेट करें, करोड़ों रुपए के मेगा फ्रॉड में मुल्जिम मलिक अब्दुल हई अदालत में पेश कर दिया गया। मुल्जिम मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया है। नैब के तफ्तीशी अफसर हुसैन अली सुखेरा ने मजीद तहकीकात के लिए रिमांड की इस्तदा की। मुल्जिम के खिलाफ 68 करोड़ 80 लाख रुपए फ्रॉड की 191 शिकायत मौसूल हुई। मुल्तान नैब ने मुल्जिम की 7 जायदादें भी फ्रीज कर दी हैं। आपको बताएं, मुल्जिम ने 4H ट्रेडर्स और AH एक्सपर्ट्स के नाम से जाली कंपनियां बनाई। मुल्जिम ने 30% मुनाफा का लालच देकर शहरियों से अरबों रुपए हथिया लिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की कल आखिरी तारीख है। टैक्स गोशवारे जमा करवाने का ट्रेंड ताहाल स्लो है। इंटरनेट सर्विस स्लो होने से भी टैक्स रिटर्न्स मुतासिर हो रहे हैं। मजीद जानेंगे सैयद सुहेब बुखारी से। आज बिल्कुल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आज सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख जो है वो 15 अक्टूबर यानी कि कल जो है वो आखिरी रोज़ है। और इस तनाजुर में अगर हम बात करें, आज फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो है वो टैक्स रिटर्न जमा करवाने का जो ट्रेंड है वो पहले की तरह जो है वो काफ़ी स्लो जो है वो देखने में आ रहा है। और इस सिलसिले में बात करें तो क्योंकि PTCL की जानिब से भी इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने का जो है वो ऐलान किया गया था और ये कहा गया था कि 18 घंटे से ज़ायद का वक्त जो है वो इंटरनेट की बहाली में जो है वो लग सकता है। और इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने से टैक्स रिटर्न्स भी शदीद मुतासिर होने का खदशा है। इस सिलसिले में अगर हम बात करें तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ये भी कहा गया कि इस बार तारीख में इजाफा जो है वो नहीं किया जाएगा। टैक्स रिटर्न जमा न करवाने वाले लेट फाइलर्स कंसीडर होंगे और फिर उनको लेट फाइलर्स के साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ जुर्मानों का सामना भी जो है वो करना पड़ सकता है। तो टैक्स पेयर जो है वो जल्द से जल्द अपने टैक्स रिटर्न्स को जो है वो जमा करवाएं ताकि वो लेट फाइलर्स की कैटेगरी से भी बच सकें और जुर्मानों से भी बच सकें। तो 15 अक्टूबर रात 12 बजे तक जो है वो टैक्स रिटर्न्स जो है वो जमा करवाई जा सकती हैं। और जबकि जो सनती बरादरी है, ताजिर बरादरी है, उनके जानिब से भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि कम से कम 30 नवंबर तक तारीख में जो है वो इजाफा किया जा सके। जी सैयद सुहेब बुखारी, बहुत शुक्रिया आपका। टैक्स गोशवारे जमा करवाने में 1 रोज बाकी, छोटे ताजर गोशवारे जमा न करा सके, मुश्किलात बरकरार। सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब तंजीम ताजरान कैसर इकबाल की रोहित से खसूसी गुफ्तगू, कहते हैं कि
मुल्क में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। बहुत से लोगों ने अभी तक अपने टैक्स जमा नहीं करवाए क्योंकि कारोबारी हालात भी सिफर हो चुके हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे फराज रमजान से। फराज बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में टैक्स गोशवारे जमा करवाने की कल आखिरी तारीख है। बात करते चले तो बहुत से छोटे ताजिर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाए। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करते चले तो हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान मलिक कैसर इकबाल हमारे हमारा मौजूद है। इनसे जान लेते हैं जो इस वक्त मामला कर रहे हैं मुल्क में। मेरे ख्याल कुछ कहने की ज़रूरत तो नहीं है। आपके सामने सबसे पहले तो सैलाबी हालात देखें, लोग जो है सैलाबों में पानियों में घिरे हुए हैं, लोगों के घर नहीं हैं। उसके बाद कारोबारी पोजीशन ये है कि पिछले 5 दिन से सारे रोड बंद हैं, लोग इन आउट नहीं हो सकते। तो ये कल की जो है आखिरी डेट दे रहे हैं। मेरी तो FBR से गुजारिश यही करना चाहूँगा कि कम से कम 90 दिन का रिलीफ देना चाहिए। अगर 90 दिन का रिलीफ नहीं देते तो कम से कम कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर देना चाहिए। ताजिर बरादरी को 15 दिन का या 1 माह का जो भी टाइम देना चाहते हैं वो देना चाहिए। कारोबार के हालात तो ये हैं कि हमारे पास हम शहर में खड़े हुए हैं, बाहर का गाहक तो बिल्कुल वाइंड अप हो गया ना, आ ही नहीं रहा। और कारोबारी हालात ये हैं कि इस वक्त जो है बिजली के बिल और जो दुकानों के किराए हैं वो भी अदा नहीं किए जा सकते। हम FBR के साथ हैं, उनके शाना बशाना खड़े हैं। जो दुनिया तरक्की करती है वो टैक्स की सूरत हाल पे ही तरक्की करती है। जो जमा पैसे होते हैं उनसे ही तरक्की होती है हम लोगों की। तो बिल्कुल हम टैक्स भरने के लिए तैयार हैं और भरते रहेंगे, लेकिन हमारी गुजारिश है कि थोड़ा सा हमें रिलीफ दिया जाए, कुछ दिन बढ़ाया जाए। ताजिर अपनी दुकानों के किराए तक जो है वो नहीं दे पा रहे और कारोबार भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ताजिरों को 90 दिन तक का रिलीफ दिया जाए। अगर 90 दिन का रिलीफ नहीं देते तो कम से कम 15 दिन से 1 माह का रिलीफ दिया जाए। वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर कामरान का रहीम यार खान कैंपस का दौरा। डायरेक्टर कैंपस डॉक्टर सुहेल शरीफ ने वाइस चांसलर को तालीमी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। तालीमी मयार, रिसर्च और तदरीस पर वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी ने फैकल्टी को लेक्चर दिया। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं आसिम सदीक, आगाह कीजिएगा। वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान ने रहीम यार खान कैंपस का दौरा किया, फैकल्टी से मीटिंग की, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से लेक्चर भी दिया। वाइस चांसलर साहब, बड़ी अहम मीटिंग है, तो रहीम यार खान को कैंपस को किस तरह से आप देखते हैं, क्या क्या यहाँ पे बेहतरी लाई जा सकती है? वो ख़ास तौर पर अपने ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनका दिया गया जो इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से, तो आउटकम एजुकेशन कैसे मुमकिन है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने जो 7 मई को इधर ज्वाइन किया था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि थ्रू आउट जो हमारे जितने भी कैंपसेस हैं या एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनमें वो सिस्टम जो इस वक्त राइज हो चुका है और पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है वो है आउटकम बेस्ड, यानी कि हर चीज़ का कोई ना कोई नतीजा खेज होना चाहिए। उसकी तालीम जो उनसी है, जो पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चे किस तरीके से अपनी नॉलेज को अप्लाई करके किस तरीके से मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स को ऐड करने के लिए आज मैंने एफिलिएटेड कॉलेज और यहाँ की फैकल्टी को ट्रेनिंग दी है और इंशाल्लाह ताला बहावल नगर भी जाना है। तो इसके ऊपर जब हम कोर्सेज़ को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हम बहुत बेहतर तरीके से मुल्क की खिदमत कर सकेंगे। टीचर्स को स्लाइड्स और नोट्स से हट के एक बाकायदा टेक्स्ट बुक, जो कि मैं अभी क्लासों में मैं बल्कि राउंड भी करता हूँ थ्रू आउट जब से मैंने चार्ज संभाला है, और बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी करता हूँ और देखता हूँ किस चीज़ की कमी है, उनको हदायत भी देता हूँ उस हिसाब से। और वो जो किताबें जो सी वो फॉलो कर रहे हैं। और दूसरा स्किल सेट का मतलब ये है कि प्रैक्टिकली उनको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी काम को अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करते प्रोजेक्ट्स कर सकें जो कि मुल्क के बहुत काम आ सकता है। बिल्कुल अच्छी एजुकेशन के हवाले से ये लेक्चर दिया गया यहाँ पे। वो आने का मकसद भी यही था कि जो डिफ़िकल्टी है उनको जदीद तरीका राइज है इस वक्त एजुकेशन के, उससे तरबियत भी दी जा सके और बच्चों को भी आउटकम्स भी मिले, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन उसी वक्त मुमकिन हो सकेगी जब अच्छे तौर पर पढ़ाया जा सके। और जी आसिम सदीक, बहुत शुक्रिया आपका। रहीम यार खान में सैलाब मुतासरा तलबा के लिए ज़राई कॉलेज में दाखिलों की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। ज़राई कॉलेज में 3 साल डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर साइंसेज के दाखिले 31 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी से। आमिर बताइएगा। रहीम यार खान के इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जनूबी पंजाब भर से स्टूडेंट्स जो है वो डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर साइंसेज में जो है वो सालाना जो है वो एडमिशन्स लेते हैं, और जिसमें सैकड़ों की तादाद में जो है वो एप्लीकेशंस आती हैं दाखिले के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इकरार हुसैन साहब, उनसे जानते हैं। सर, सैलाबी सूरत हाल के बायस आपने थोड़ी सी जो है वो इसमें डेट में नरमी भी की है और जो डेट अगली बताई जा रही है कन्फर्म, कब तक स्टूडेंट्स जो है
وہ اس میں اپلائی بھی کر سکتے ہیں جنوبی پنجاب بھر سے، اور اس ڈپلومے کے حوالے سے تھوڑی مزید رہنمائی کیجیے؟ دیکھیں، چونکہ ہمارے مختلف جو ڈسٹرکٹ ہیں، 3 ڈویژن ہمارے، سائیول ڈویژن ہو گیا، بہاولپور ڈویژن ہو گیا، ملتان ڈویژن، تو موسٹلی ایریاز میں جو ہے وہ فلڈ آیا ہوا تھا. تو ہماری کمپین جو ہے ایڈمیشن کی، وہ ہم نے جو ہے وہ چلائی ہوئی تھی، لیکن ابھی ہم ایک اور موقع دے رہے ہیں، جو کہ یہ ہمارا کالج بڑا پرانا کالج ہے اور بہت بڑی سہولت ہے جنوبی پنجاب کے ہمارے جو اسٹوڈنٹ ان کے لیے. تو ہم 31 اکتوبر تک جو ہمارے یہ ڈسٹرکٹ ہیں، جس میں بہاولپور ڈویژن کے ڈسٹرکٹ آ جاتے ہیں 3، ملتان ڈویژن کے آ جاتے ہیں، سائیوال ڈویژن کے، تو 31 اکتوبر تک سہولت دے رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ آ کے مستفید ہوں اور ایڈمیشن لے سکیں. اور آج کل موسٹلی ایریاز جو ہیں وہ سیٹل ہو چکے ہیں، جو کہ فلڈ نیچے چلا گیا ہے. تو اس کے علاوہ کوٹا سسٹم بھی ہے ڈسٹرکٹ کا، تو وہ بھی اگر چاہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں ہمارے پاس. جی بالکل، ہمیں تفصیلاً بتایا گیا کہ کوٹا سسٹم بھی ہے، جنوبی پنجاب بھر کے تمام ڈسٹرکٹس کا ایک کوٹا ہے، اور 31 اکتوبر تک یہ داخلوں کا سلسلہ جاری رہے گا. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ محکمہ ایگریکلچر میں ان تمام تر اسٹوڈنٹس کا جو روشن مستقبل ہے، اس کے حوالے سے ان کو یہاں پہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ تعلیم اور سہولیات میسر کی. جی شکریہ عامر بھٹی. گورنمنٹ بوائز کمپریہنسو ہائر سیکنڈری اسکول ملتان میں کرپشن کے خاتمے کے لیے تقریری مقابلے کا انعقاد کیا گیا. تقریر میں طلباء نے کرپشن کے خاتمے کے عنوان پر تقاریر پیش کی. رشوت گناہ کہتا ہے، جب ایک نوجوان رشوت گناہ کہتا ہے، جب ایک طالب علم سچ بولتا ہے، تو وہ دراصل بدعنوانی کے خلاف جنگ جیت لیتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، قوموں کی ترقی دیانت اور محنت میں ہے، قوموں کی ترقی محنت اور دیانت میں ہے، شارٹ کٹ میں نہیں. یہ الفاظ آج بھی ہر نوجوان کے لیے مشعل رہا ہے. صدر محترم، ہر بدعنوانی صرف رشوت نہیں، یہ تو ہر وہ عمل ہے دیانت جو دیانت اور انصاف اور سچائی کے خلاف کیا جائے. اور افسوس، یہ لعنت صرف اداروں میں نہیں بلکہ ہمارے رویے میں، ہماری سوچ میں اور کبھی کبھی ہماری خاموشی میں بھی ہوتی ہے. محترم صدر محفل، قومیں بدلتی نہیں جب ان کے نوجوان جاگ اٹھتے ہیں. نوجوان جاگ اٹھتے ہیں. آج ہمارا وطن ہم سے یہ عہد مانگتا ہے، آج ہمارا وطن یہ ہم سے وعدہ مانگتا ہے کہ ہم صرف شکایت کرنے والے نہ بنے بلکہ اصلاح کرنے والے نوجوان بنے. ہم دوسروں پر انگلی اٹھانے کے بجائے اپنی ذات سے تبدیلی کا آغاز کریں گے. ہم وہ نسل بنیں گے، وہ قوم بنیں گے جو کرپشن کے خلاف قدم اٹھائے گی. ہم حق کی بات کریں گے اور دیانت کو اپنا فخر بنائیں گے. نوجوانوں، یہ وطن تمہاری امانت ہے، یہ وطن تمہاری امانت ہے. اس کے مستقبل کی کنجی تمہارے ہاتھ میں ہے. اگر تم نے اس ایمانداری سے تھاما تو پاکستان کی ترقی کرے گا. اگر تم نے غفلت کی تو آنے والی نسلیں تمہیں معاف نہیں کرے گی. آج ہم سب یہ وعدہ کرتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے کردار کو وطن کی پہچان بنائیں گے، ہم اپنے ملک کا نام روشن کریں گے، ہم سچ بولیں گے، حق کا ساتھ دیں گے اور دیانت کو اپنا زیور بنائیں گے. کیونکہ کرپشن کے خلاف سب سے مؤثر ہتھیار ایک سچا انسان ہوتا ہے، اور وہ سچا انسان آپ ہیں، میں ہوں اور ہم سب ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.